Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn, students, Unit 2, Theory of Quadratic Equation. We will going to discuss the topic cube roots of unity and their properties, and we will going to solve exercise 2.2. The cube roots of unity. Students, the cube roots of unity are 1, -1, minus square root of minus 3 over 2, and third -1 plus square root of minus 3 over 2. The two complex cube roots of unity are, like in three cube roots of unity में two क्या होते हैं complex cube roots of unity, और वो क्या होते हैं -1 minus square root of minus 3 over 2, and the second one is -1 plus square root of minus 3 over 2. If we name any one of these as omega, like it is pronounced or read as omega, then the other is omega square. अगर हम इसको ओमेगा कहेंगे तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, और अगर हम इसको ओमेगा कहेंगे तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा. Now students, properties of cube roots of unity. Here number 1, the product of cube roots of unity is 1. Like when we are going to multiply these cube roots of unity, आपके पास एक cube roots of unity क्या है, 1, एक क्या है ओमेगा और एक क्या है ओमेगा स्क्वायर. सो इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा क्यूब. इट विल बी इक्वल टू 1. इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. Second, each complex cube roots of unity is reciprocal of each other. Like we know that omega cube is equal to 1. जब हम इसको लैदा कर लेंगे, लाइक ओमेगा को सेपरेट कर लें और ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट कर लें. अब आपके पास ओमेगा किसके इक्वल आएगा, ओमेगा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो ओमेगा किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर का. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ओमेगा स्क्वायर राइट साइड पे रहे और ओमेगा को आप ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा. सो ओमेगा स्क्वायर रेसिप्रोकल किसका है, 1 ओवर ओमेगा का. सो ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर. नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0. लाइक अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 0. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ स्टूडेंट्स, इन फोर्थ प्रॉपर्टी, each complex cube roots of unity is square of the other. Like here, if omega is equal to -1 minus square root of minus 3 over 2, then omega square will be equal to -1 plus square root of minus 3 over 2. And if omega is equal to, like यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाला था, अगर वो ओमेगा था तो पॉजिटिव वाला क्या था, ओमेगा स्क्वायर था. अब यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला रूट है, अगर वो ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव वाला. सो ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ दी. नाउ स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2.2. here we have the question number 1. find the cube roots of unity -1, 8, -27 and 64. I am going to find out the cube roots of unity of -1. Here we have let x is equal to -1 और इसकी पावर क्या ले ली मैंने, 1 over 3. Now I am going to take the cube on both sides, so x cube will be equal to -1. -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +1. so x cube plus 1 will be equal to 0. Now student, x cube plus 1 cube is equal to 0. अब आपके पास a cube plus b cube का ये फार्मूला बन गया, ठीक है. सो इट विल बी इक्वल टू x plus 1 into x squared minus x into 1 plus 1 squared is equal to 0. So it is equal to x plus 1 into x squared minus x plus 1 equal to 0. अब आपके पास x plus 1 equal to 0, एक ये रूट आ गया और एक रूट आया आपके पास x squared minus x plus 1 is equal to 0. Now students, x plus 1 है तो +1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, -1. और एक बार x square minus 1 plus 1, we are going to solve this by using quadratic formula. We are going to compare with its standard form. So a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to 1. Now students, we are going to put all the values in the formula. We get
1 plus minus square root of 1 minus 4 over 2, then 1 plus minus square root of minus 3 over 2. अगर आपके पास माइनस का साइन रेडिकल में अकर हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर होगा. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने -1 कॉमन ले लिया. -1 कॉमन लेने से मेरे पास क्या आया, 1 के साथ क्या था प्लस, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस. सो ये प्लस माइनस अगेन चेंज होके क्या आ जाएंगे प्लस माइनस. मैंने माइनस का साइन क्यों कॉमन लिया मैं आपको फर्दर आगे बताती हूँ. नाउ स्टूडेंट्स, एक बार आपके पास x इज इक्वल है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 over 2, और एक बार आपके पास x इज इक्वल है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2. अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ओमेगा के. इट मीन्स डेट x की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा. और अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर ओमेगा के इक्वल है तो इसमें जो नेगेटिव वाला इंटीजर होगा वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के. और ये जो बाहर माइनस है मैंने वैसे ही पुट कर दिया. सो द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ -1 आर -1, ये आपने फर्स्ट ड्राइव किया था, फिर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. It is your answer. Now students, we are going to solve the question number 2. Evaluate its part number 1, 1 minus omega square whole raised to power 7. Solution, here I write the question. अब माइनस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस, तो अंदर आपके पास क्या रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से क्या ड्राइव होती है -1. सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. मैंने वहाँ पे -1 लिखा. नाउ माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 रेज़ टू पावर 7, तो 2 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू 128. इट इज योर आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू प्रूव द क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, we are going to prove x cube plus y cube is equal to x plus y into x plus omega y into x plus omega square y. Now students, solution करेंगे इसका. I am going to solve from its right hand side, x plus y, x plus omega y plus x plus omega square y. Students, we know that x cube plus y cube किसके इक्वल होता है, x plus y into x square minus xy plus y square. So it means that मेरे पास एक रूट ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों को क्या करूँगी मल्टीप्लाई करूँगी और इनको सॉल्व करूँगी. नाउ स्टूडेंट, x plus y, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स, x into x x square, omega y into omega y square omega square xy, omega y into x omega xy, omega y into omega square y, omega cube y square. Now students, we know that xy is common between these two terms. We are going to take the common xy from these terms. So omega square plus omega into xy plus omega cube into omega y square. Now students, we know that omega square plus omega is equal to -1. So we are going to put the value of omega plus omega square here -1, and we know that omega cube is equal to 1. So we can put we are going to put the value of omega cube 1. Now students, x plus y x square plus minus xy plus y square into 1 y square. Now students, we know that x cube plus y cube किसके इक्वल होता है, x plus y into x square plus xy plus y square. So it will be equal to x cube plus y cube, and it will be equal to the left hand side. It is your answer. Now students, we are going to solve the question number 4. Prove that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz x plus y plus z x plus omega y plus omega square z into x plus omega square y plus omega z. Now students, we know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz will be equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx. So I am going to take its right hand side. आपका फर्स्ट जो फैक्टर है आपके पास ऑलरेडी है. Now we are going to take the product of these brackets. प्रोडक्ट लेंगे, x into x x square, x को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर से तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई. नाउ x को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा z से तो ये आ जाएगा ओमेगा एक्स जेड. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ओमेगा y विद दीज टर्म्स. वी गेट omega yz, omega cube y square and omega square yz. Now we are going to multiply omega square z with omega z. We are getting these terms, omega square xz plus omega 4 zy plus omega cube
z square. Now स्टूडेंट्स आप देखें आपके पास इधर भी एक्स वाई है और इधर भी एक्स वाई है. सो आई एम गोइंग टू टेक द कॉमन एक्स वाई फ्रॉम दीज टू टर्म्स. तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या आ गया, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया और यहाँ से क्या आ गया, ओमेगा आ गया. एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर मैंने वाई स्क्वायर वाली वैल्यू लिख दी, फिर मैंने जेड स्क्वायर वाली वैल्यू राइट कर दी. नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखें, अब मेरे पास ये वाई जेड है ओमेगा स्क्वायर के साथ. अब कोई और टर्म देखें जिसके साथ आपके पास वाई जेड हो. हेयर वी हैव वाई जेड विथ ओमेगा की पावर 4. आपने इन दोनों में से वाई जेड कॉमन ले लिया. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस, हेयर ओमेगा जेड एक्स एंड इधर देखिए ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स. सो आई एम गोइंग टू टेक कॉमन जेड एक्स और मेरे पास ब्रैकेट में क्या आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स x plus y plus z, we know that omega cube is equal to 1, so I'm going to put the values omega cube is equal to 1. इधर भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या पुट की, 1. वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के. एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4. अब ओमेगा की पावर 4 जो है ये आपके पास क्या होती है, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1. सो यहाँ पर क्या आ गया होगा, ओमेगा. तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विल बी इक्वल टू -1. हियर इज आल्सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. Now students x plus y plus z is equal to x square plus y square z square minus xy minus yz minus zx. So it will be equal to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So this will be equal to the left hand side. It is your required answer.